and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss the Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. It is also called POS Act 2013, Prevention of Sexual Harassment 2013. So, in this section, in this part, I will discuss three sections. First three sections. Section 1 short title extent and commencement, section 2 definitions, section 3 prevention of sexual harassment. So it is part 1, and in this part also I will discuss 10 MCQs and also I briefly explain 3 sections. Okay, according to the demand of many candidates, actually I bring this part because preceding time also I uploaded POS Act 2013, but now again very briefly and with clarity, just I am going to present the sexual harassment of women at workplace, prevention, prohibition and redressal act 2013. Okay, so my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Follow my Facebook page, it is Asit Government Rule Guru. My WhatsApp number is there, it is 8327782034. If any query is there, you can contact with me and clarify your doubt. First, I will discuss 10 MCQs. Then I will briefly explain first 3 sections of POS Act 2013. Okay, question number 1 you see. When did the POS Act come into force? Right? So when did the POS Act come into force? 4 options given. 26th January 2013, 9th December 2013, 15th August 2013, 2nd October 2013. Year 2013, you know, it is 9th December 2013. Actually, it is called POS, Prevention of Sexual Harassment Act 2013. It came into force on 9th December 2013. Okay, option B is the correct answer. Question number 2. The POS Act extends to only central government workplaces, only private workplaces, whole of India, only urban areas. So 4 options, it is whole of India. This act extends to whole of India. You remember, right? So option C is the correct answer. Question number 3. Who is considered an aggrieved woman under the act? Right? 4 options, any woman employed or not, alleging sexual harassment, only women below 60, only working women, only permanent employees. 4 options are there. So aggrieved woman means actually the victim. Okay, the victim woman, actually the woman who exploited and oppressed, right? So option A is the correct answer, any woman employed or not alleging sexual harassment. ओके कभी कभी हमारे माइंड में है कि ओनली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कि जो प्राइवेट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको याद रखना है एनी वुमन एम्प्लॉयड और नॉट. आपका घर में इन योर होम ऑल्सो, इन केस ऑफ मेड सर्वेंट, इफ सी इज एक्सप्लॉइटेड एंड सी इज ह्यूमिलेटेड ऑल्सो, इट मीन्स she would be the aggrieved woman. Okay, so any woman employed or not alleging sexual harassment. Option A is the correct answer. Question number 4. Who is a respondent under the POS Act? हम किसको respondent बोलेंगे? 4 options given. A woman filing the complaint, the internal committee head, the employer, a person against whom the complaint is made. 4 options given. Option D is the correct answer. जिस पर्सन के अगेंस्ट में एक्चुअली एलिगेशन लगा है, जिस पर्सन के ऊपर चार्ज लगा है, उसी को हम रेस्पोंडेंट बोलेंगे. ओके, ऑन whom the charge is imposed, on whom actually the allegation is made, right? उसी को हम रेस्पोंडेंट बोलेंगे. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. What does workplace include under this act? ये जो पोस्ट एक्ट में वर्कप्लेस में क्या क्या इंक्लूड है, इसको सब मैं डिस्कस करूंगा. डेफिनेशन जो सेक्शन 2 में है, गवर्नमेंट ऑफिसेस, प्राइवेट कंपनीज, होम्स एम्प्लॉइंग डोमेस्टिक वर्कर्स, ऑल ऑफ द अबव. देखिए सभी होगा, गवर्नमेंट ऑफिस होगा, प्राइवेट कंपनीज होगा,
और यदि हम कोई डोमेस्टिक वर्कर्स सपोज एनी एनी वोमैन सपोज वर्किंग इन होम एंड सी इज एक्सप्लॉइटेड एंड ह्यूमिलेटेड बाय एनी फैमिली मेंबर, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हु इज कंसिडर्ड एन एम्प्लॉय अंडर दिस एक्ट। ये जो पोस्ट एक्ट 2013 में एम्प्लॉय को कैसे कंसिडर किया गया है, ओनली परमानेंट स्टाफ, एनी पर्सन वर्किंग इन एनी कैपेसिटी पेड और अनपेड, ओनली पेड स्टाफ, नन ऑफ द अबोव। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। एनी पर्सन वर्किंग इन एनी कैपेसिटी पेड और अनपेड, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द इंटरनल कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर व्हिच सेक्शन। आपको मालूम होगा एवरी डिपार्टमेंट चाहे प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो, इंटरनल कमिटी होना चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होना चाहिए। सपोज कोई भी जब वर्क प्लेस में कोई भी जब वोमेन एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट किया जाता है तो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आप देख लीजिए सेक्शन 4 देख लीजिए, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। इंटरनल कमिटी में क्या क्या मेंबर्स है, हु वुड बी द चेयरमैन एंड हु आर द मेंबर्स ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, तो विदिन हाउ मच पीरियड एक्चुअली इंटरनल कमिटी मस्ट सबमिट द रिपोर्ट, ये सब डिटेल्स में बताऊंगा। तो जो इंटरनल कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो अंडर सेक्शन 4 है, पोस्ट एक्ट 2013 का सेक्शन 4 है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो रूल पोजीशन सेक्शन पोजीशन को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, which of these is not listed under section 3 subsection 2। सेक्शन 3 को देखिए, उसका सबसेक्शन 2, आज ए सर्कमस्टांस रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट, थ्रेट टू जॉब स्टेटस, क्रिएशन ऑफ हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, जेंडर इक्वालिटी ट्रेनिंग, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट अफेक्टिंग हेल्थ और सेफ्टी। बोलिए which of these is not listed। सो ऑप्शन सी जेंडर इक्वालिटी ट्रेनिंग इंक्लूड नहीं है, अदर सब इंक्लूड है। जॉब स्टेटस जो सपोज एनी वुमेन एम्प्लॉय है और उसका सुपरियर उसको थ्रेट दे रहा है जॉब स्टेटस रिलेटेड में, तो सपोज कोई फीमेल एम्प्लॉय के लिए हॉस्टाइल वर्किंग एनवायरनमेंट है कि सपोज उसको मैं जो फीमेल एम्प्लॉय है उसको ह्यूमिलेटिंग किया जाता है और उसमें उसका हेल्थ एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है कि उसको सेफ्टी नहीं मिल रहा है, ये सब सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर जो है ये इंक्लूड नहीं है, जेंडर इक्वालिटी ट्रेनिंग इंक्लूड नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क राइट एनवायरनमेंट इज कंसिडर्ड डैश। कोई क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट फॉर फीमेल एम्प्लॉइज, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन है, टाइप ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अंडर द एक्ट, नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ कॉर्पोरेट जॉब्स, गुड टीम बिल्डिंग, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टाइप ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अंडर द एक्ट। ओके, तो ये जो है आप सेक्शन 3 में हम डिस्कस करेंगे, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में उसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए वायोलेशन अंडर द पोस्ट एक्ट। जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट में, इसमें आप देख लीजिए क्या वायोलेशन है। कंडक्टिंग सेफ्टी ड्रिल्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड जोक्स इन द ऑफिस, शेयरिंग वर्क अपडेट्स, आस्किंग फॉर फीडबैक फ्रॉम टीम। क्या वायोलेशन है पोस्ट एक्ट में, ऑप्शन बी मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड जोक्स इन द ऑफिस। ऑफिस में फीमेल एम्प्लॉइज है और कोई मेल एम्प्लॉई वो सेक्सुअली कलर्ड जोक्स सपोज ये कर रहा है तो वो भी इट मीन्स सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये 10 बहुत सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि आज मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन 1 टू सेक्शन 3, अदर पार्ट्स में थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आएगा। चलो ठीक है, अभी हम सेक्शन 1 टू सेक्शन 3 को एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर देख लीजिए, यहां पर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स ऑन 9th December 2013। एक्ट नंबर 14, ये रूल पोजीशन को याद रखना है, एक्ट नंबर 14
जो पार्लियामेंट का जो एक्ट है, एक्ट नंबर 14 ऑफ 2013, चैप्टर 1 में सेक्शन 1 to 3 एक्सप्लेन किया गया है। ये जो पोस्ट एक्ट 2013 में डिफरेंट चैप्टर्स है, ये जो चैप्टर 1 है इसमें सेक्शन 1 to 3 है, ठीक है। सेक्शन 1 सब टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ओके, सेक्शन 1 डिफाइन देखेंगे। सेक्शन 1 में टाइटल है और एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, याद रखना है, ठीक है। और इट केम इन टू फोर्स ऑन 9 दिसंबर 2013। तो ये अप्लीकेबल जो है, ये जो पोस्ट एक्ट जो अप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया में, और इट केम इन टू फोर्स ऑन 9 दिसंबर 2013। और उसका जो पूरा नाम है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है। तो सेक्शन 1 सब टाइटल को डिफाइन किया है, ठीक है। सेक्शन 2 में डिफरेंट डेफिनेशंस देखेंगे। डेफिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे अग्रीव्ड वोमैन मीन्स, अग्रीव्ड वोमैन जिस वोमैन को एक्चुअली एक्सप्लॉइट किया गया, कि सपोज उसको ह्यूमिलिएट किया गया, उसको ऑप्रेस किया गया, ठीक है। तो ए वोमैन ऑफ एनी एज एम्प्लॉयड और नॉट हु alleges to have faced sexual harassment at workplace as a domestic worker in a dwelling house। ओके, ए वोमैन ऑफ एनी एज, कोई एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, एम्प्लॉयड और नॉट, वो सपोज कंप्लेन कर रहा है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट फेस किया है वर्क प्लेस में। और कभी कभी जो डोमेस्टिक वर्कर है, जैसे मेड सर्वेंट है ड्वेलिंग हाउस में, ठीक है। तो कोई भी डोमेस्टिक वर्कर है, यदि डोमेस्टिक वर्कर नॉट फैमिली मेंबर्स, डोमेस्टिक वर्कर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तब वो सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा, उसको ही अग्रीव्ड वोमैन बोलेंगे। तो ये दो चीज को आपको याद रखना है, आर्ट वर्क प्लेस और आज ए डोमेस्टिक वर्कर इन ए ड्वेलिंग हाउस। ओके, सो यहां पर भी याद रखना है एम्प्लॉयड और नॉट, चाहे उसको इट मीन्स वो सपोज कोई भी मैटर में सपोज वो ऑफिस को गया है, वो तो एम्प्लॉयड नहीं है, मगर फॉर सम सर्टन मैटर एक्चुअली शी हैज विजिटेड द ऑफिस एंड सपोज एक्सप्लॉइटेड बाय एनी पर्सन, ओके, एनी सपोज एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑफिस, तो ये हो सकता है। तो ए वुमन ऑफ एनी एज एम्प्लॉयड और नॉट who alleges to have faced sexual harassment at workplace or any domestic worker in a dwelling house, ठीक है। उसको हम अग्रीव्ड वोमैन को इसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट वन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, फॉर वर्क प्लेसेस अंडर सेंट्रल कंट्रोलर फंडिंग, और स्टेट गवर्नमेंट फॉर ऑल अदर वर्क प्लेसेस विद इन इट्स टेरिटोरी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, राइट। ये इसको भी याद रखना है, जैसे सेक्शन 2A, सेक्शन 2A जो अग्रीव्ड वोमैन को डिफाइन किया है, सिमिलरली सेक्शन 2 सबसेक्शन B वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया है। और जो सबसेक्शन 2C है चेयरपर्सन, चेयरपर्सन मीन्स लोकल कंप्लेंट कमिटी, जो आपका आप देख लीजिए आपका इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, एनी ऑफिस एनी सपोज चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है, और लोकल लेवल में भी कमिटी है, तो चेयरपर्सन उसको इसको सबसेक्शन 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन C चेयरपर्सन को बेसिकली डिफाइन किया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 5 टू ओवरसी इंप्लीमेंटेशन। सेक्शन 5 में ए पोस्ट एक्ट का सेक्शन 5 देखिए, ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन को देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, वेदर एक्चुअली पोस्ट एक्ट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड और नॉट। यहाँ पर नेक्स्ट वन, डोमेस्टिक वर्कर, इससे रिलेटेड में क्वेश्चन आता है, मीन्स ए वुमन हु इज एम्प्लॉयड टू डू द हाउस होल्ड वर्क इन एनी हाउस होल्ड फॉर रिम्यूनरेशन whether in cash or kind, either directly or through any agency on a temporary, permanent, part time or full time basis, but does not include any member of the family। तो डोमेस्टिक वर्कर में कोई फैमिली मेंबर को हम नहीं लेंगे। सपोज ड्वेलिंग हाउस में कोई भी वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिला है, और चाहे वो इट मीन्स थ्रू एजेंसी हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिला है, चाहे फुल टाइम और पार्ट टाइम हो, ठीक है, तो उसको हम डोमेस्टिक वर्कर बोलेंगे। बेसिकली ड्वेलिंग प्लेस में जो वर्कर्स काम करते हैं,
फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर इंक्लूड हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली सेक्शन 2 सबसेक्शन ई डोमेस्टिक वर्कर को डिफाइन किया है। और एफ को एम्प्लॉई एनी पर्सन वर्किंग on any basis, regular, temporary, ad hoc, daily wage, volunteer, either directly or through agent or contractor, whether paid or unpaid. एम्प्लॉय मीन्स सभी को लेना है, चाहे टेम्पोररी हो, चाहे ad hoc हो, चाहे डेली वेज हो, चाहे वॉलंटियर हो, सबको लेना है, ठीक है। और डायरेक्टली और सपोज आइदर डायरेक्टली और थ्रू एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंटमेंट मिला है, वेदर पेड और अनपेड, तो सबको लेना है एम्प्लॉय में, ठीक है। इसके रिलेटेड में क्वेश्चन मिल सकता है आपको। और नेक्स्ट वन, एम्प्लॉयर includes head of the organization, government or private, person managing or supervising workplace, household employing a domestic worker, ये सब एम्प्लॉयर में आ जाता है, ठीक है। हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन मैनेजिंग और सुपरवाइजिंग वर्कप्लेस, और हाउस होल्ड एम्प्लॉइंग ए डोमेस्टिक वर्कर, जो हाउस होल्ड एक डोमेस्टिक वर्कर को मीन्स रिक्रूट किया है और वो ड्वेलिंग हाउस में काम कर रहा है, उसको भी वो हाउस होल्ड को भी एम्प्लॉयर माना जाएगा। इंटरनल कमिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये रूल पोजीशन को याद रखिए। सेक्शन 2 उसका सबसेक्शन एच मीन्स एन इंटरनल कंप्लेंट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4। जो पोस्ट एक्ट का सेक्शन 4 एक्चुअली आईसीसी के ऊपर डिफाइन किया है, उसमें हु वुड बी द चेयरमैन, हाउ मेनी मेंबर्स शुड बी देयर एंड द मेंबर्स क्वालिफिकेशन, ये सब दिया है। आई लोकल कमिटी है, मीन्स द लोकल कंप्लेंट कमिटी, एक लोकल कंप्लेंट कमिटी भी रहता है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 6। जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है बेसिकली वो ऑफिसेस कंपनीज उसमें होता है, ठीक है, मगर एक लोकल कमिटी होता है। लोकल कमिटी को जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है वो अंडर सेक्शन 6 उसको डिफाइन किया है। मेंबर है, चाहे आईसीसी हो चाहे लोकल कंप्लेंट कमिटी हो, उसमें मेंबर्स होते हैं, तो उसको बेसिकली सेक्शन 2 सबसेक्शन जे डिफाइन किया है। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मीन्स जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी का जो चेयरमैन है, आईसीसी का जो चेयरमैन है, वो एक्चुअली प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है। रेस्पोंडेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रूल पोजीशन को याद रखिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन एम, रेस्पोंडेंट जिसके ऊपर चार्ज लगा है, on whom the charge is imposed, okay, on whom the allegation is made, the person against whom the complaint is made by the aggrieved woman। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे सेक्सुअल हरासमेंट में क्या क्या आ जाता है, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन एन, it includes physical contact and advances, a demand or request for sexual favors, making sexually colored remarks, showing pornography, any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature। ये सबको याद रखना है, चाहे फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, कोई रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फीवर, ये कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, शोइंग पोर्नोग्राफी, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, वो सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो उसमें सेक्सुअल हरासमेंट इनपुट्स जो है, जो 5 बिट्स है, उसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इस रिलेटेड में क्वेश्चन आता है, और ये इसको जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन एन, इसको याद रखना है, रूल पोजीशन को याद रखना है। नेक्स्ट वन, वर्कप्लेस, ये वर्कप्लेस के ऊपर क्वेश्चन आता है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, यदि आप एम्प्लॉयर आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रहा है, वो भी वर्कप्लेस में आएगा। ड्वेलिंग हाउसेस, कोई डोमेस्टिक वर्कर्स है, डोमेस्टिक वर्कर्स ऑल्सो वर्किंग इन ड्वेलिंग हाउसेस, फैमिली मेंबर्स को नहीं लेना है, ड्वेलिंग हाउसेस सम वर्कर्स एक्चुअली दे आर वर्किंग, ओके। तो ये सब वर्कप्लेस, ये सब कुछ आ जाएगा वर्कप्लेस में, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो रूल पोजीशन सेक्शन 2 सबसेक्शन ओ, इसको याद रखना है, वो वर्कप्लेस को डिफाइन किया है, क्या क्या वर्कप्लेस में इंक्लूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या है, लेस देन 10 वर्कर्स होते हैं और ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये सब जैसे फार्मिंग है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, उसमें वर्कर्स लेस देन 10 होते हैं, और ये इसमें एक्चुअली जो रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है उसके हिसाब से
ये सेक्टर को रजिस्टर नहीं किया जाता है, और बेसिकली जहां पर वर्कर्स लेस देन 10 है, ओके, तो वही दिया है, रिलेशन टू वर्क प्लेस मीन्स एन एंटरप्राइज owned by individuals or self-employed workers and engaged in the production or sale of goods or providing service of any kind whatsoever, and where the enterprise employs workers, the number of such workers is less than 10. बेसिकली जो फार्मिंग है बेसिकली वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाता है। आप देखा होगा राइस मिल है कि फ्लोर मिल है जिसमें लेस देन 10 वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, और इस तरह को अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलेंगे, ठीक है, जहां पर जो पे कमीशन के हिसाब से सैलरी नहीं मिलता है, कि ऐसा नहीं कि अदर बेनिफिट्स जो होता है जो फॉर्म बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो बेनिफिट्स नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इतना डिफाइन किया है जो सेक्शन 2 डेफिनेशंस दिया है। और नेक्स्ट वन सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 एक्चुअली प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट को एम्फासाइज किया है। इसमें 2 सबसेक्शन है। एक सबसेक्शन है नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस। कोई भी फीमेल एम्प्लॉय को सेक्सुअली हरास नहीं किया जाएगा वर्क प्लेस में। ये फर्स्ट, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, ओके, जहां पर एक सेंटेंस क्लियरली मेंशन है कि इन एनी वर्क प्लेस एनी फीमेल एम्प्लॉय should not be sexually harassed, and it is the responsibility of the leader of the institution or leader of the organization who provide proper safety and security to the female employees, ठीक है। तो और जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 बहुत कुछ प्रेजेंट किया है। आप देखिए सबसेक्शन 2 में इम्प्लॉयड और एक्सप्लिसिट प्रोमिस ऑफ प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट। कोई हायर ऑफिसर सपोज सुपीरियर ऑफिसर फीमेल एम्प्लॉय को सपोज बोल रहा है, सेक्सुअल फेवर मांग रहा है, और वो बोल रहा है कि मैं प्रोमिस कर रहा हूं कि आपको प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा आपका जॉब में, तो वो सेक्सुअल फेवर्स मांग रहा है, तो ये बहुत संगीन मामला है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन थ्रेटनिंग, थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन आवर एम्प्लॉयमेंट। जब मैं उसको थ्रेटनिंग, सुपीरियर ऑफिसर्स थ्रेटनिंग देते हैं, ओके, जो हायर ऑफिसर्स एक्चुअली थ्रेटनिंग द फीमेल एम्प्लॉयज, they actually ask for sexual favors, and if the female employees actually they do not agree, then they threat, actually they basically threatening to the female employees ki it means your basically job would be affected, like this, okay, it is the important one. Second one, next one, implied or explicit threat about her present or future employment status। चाहे प्रेजेंट स्टाटस हो कि फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टाटस हो, वो भी थ्रेटनिंग माने इट मीन्स वही है, सुपीरियर ऑफिसर्स जो है, हायर ऑफिसर्स, दे नीड सेक्सुअल फेवर फ्रॉम पर्टिकुलर फीमेल एम्प्लॉय, एंड इफ सी इज नॉट एग्रीड देन वो उनको धमकाते हैं, थ्रेटनिंग देते हैं कि आपका प्रेजेंट जो एम्प्लॉयमेंट स्टाटस है कि फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टाटस को खराब कर दिया जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंटरफियरेंस विथ हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट फॉर हर। कोई भी फीमेल एम्प्लॉय को सपोज उसका वर्क में इंटरफियर करना, उसको एक इंटिमिडेटिंग ऑफेंसिव और होस्टाइल वर्किंग एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट करना, तो ये भी बहुत संगीन मामला है, ठीक है, यदि प्रूव होता है तब, ओके, तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट माना जाएगा बेसिकली कंसर्न एम्प्लॉय, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्मूथ एनवायरनमेंट should be provided to the female employee, okay, so free, very flexible environment she should work। तो इसको याद रखना है, इंटरफेरेंस विद वर्क, क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट फॉर। नेक्स्ट वन, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट और हेल्थ और सेफ्टी। तो जो ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट उसको किया जाता है, उसमें उसका हेल्थ एडवर्सली अफेक्ट होता है, कि उसको इट मीन्स बेसिकली एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो ये सब आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सेक्शन 3 है उसमें 2 सेक्शन है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है कि इन एनी वर्क प्लेस एक्चुअली फीमेल एम्प्लॉइज शुड नॉट बी सेक्सुअली हरास्ड। और जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि ये जो है जैसे ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट की इंटिमिडेटिंग
कि सपोज what a threatening to her present or future employment status like this. Interference actually in her work. Okay, got a hostile working environment, to create hostile working environment फॉर पर्टिकुलर फीमेल एम्प्लॉय, ये सब आ जाता है इसमें। ठीक है, तो ये 3 सेक्शंस को मैं एक्सप्लेन किया, और सेक्शन 1 to 3 वेरी ब्रीफली एक्सप्लेन किया। ये मेरा पार्ट 1 था। तो मेरा नेक्स्ट पार्ट में मैं अदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस लाऊंगा। ठीक है, आज इतना ही है। थैंक यू एंड